Thanks a lot. Welcome. Okay. Okay, we'll start this. I'll again explain this question. So this is the question, homework question tha ye. So gas is heated at two different temperatures, P1 and P2. Which temperature is higher? Higher. Same gas hai. Number of okay, we have written the equation PV is equal to nRT. P we have sent it in denominator. So this is equal to V is equal to Y, or T is equal to X. T is taken on the x-axis. Now this is the slope. Now slope means tan theta, which is tan theta. So which is equal to nr by p. तो ये कांस्टेंट है अभी. तो p inversely proportional to theta, inversely proportional to tan theta. Less angle means less value of tan theta, therefore less more pressure. Angle किसका कम है? इसका. Theta 1 is less, therefore tan theta 1 will be less as compared to tan theta 2. So lesser the angle, more is the pressure. इसमें opposite आ रहा है. Less angle में more pressure मिल रहा है because pressure is in denominator. Lesser the angle with the temperature axis, more pressure. But if you don't want to go like this, तो ऐसा करो. चलो एक horizontal line draw कर ली. नहीं, vertical draw करते हैं. Vertical line draw कर ली. दोनों से आएगा. It's up to you. Just vertical मैंने इसलिए draw की. Hold on. Now this is the corresponding volumes. Now T, okay, PV is equal to nRT. Now T for both the process. We have taken the T constant. यहाँ पे T है. This is P1. This is P2. नहीं, volume है, sorry. वहाँ पे volume है. Corresponding to volume 1, pressure is P1. Corresponding to volume, corresponding to this pressure P2, volume is V2. Now T तो fix हो गया. अभी left hand side देखते हैं अभी. This is constant. Okay. Left, sorry, right hand side. N is already constant. R is constant. T को भी हमने constant कर दिया. Vertical line से T is constant. Now ये term पूरे constant हो गए. ठीक है. If volume is less, pressure will be more. तभी तो product constant आएगा. Volume decreases, pressure increases. है ना? ऐसे बोल सकते हैं. P inversely proportional to volume. Lesser the volume, more is the pressure. किसका volume कम है? Corresponding to P1. So answer will be P1. Therefore, P1 is more pressure, higher pressure. There are various methods to get the right answer. It is not that you don't know the slope, you cannot find out. Just logically, you can find out any answer, I'm telling you. But only thing you have to remember, ideal gas equation, PV is equal to nRT. All right. तो यहाँ से अगर now my question is this, ठीक है, समझ में आ गया? Pressure P1 is larger as compared to P2. Now suppose this is my question, next question. If line is like this, is it pressure constant है? Or pressure is increasing or pressure is decreasing? This is the extra question just related to this point only. बोलो, इसमें pressure increase हो रहा है कि constant है? Shall I, do you want to write this question? Shall I shift it here? Okay, coming to the other place. यहाँ पे लिख करते हैं. यहाँ पे देखो. Let me draw it here. Okay. Let it be there. वहां से मैं conclusion इजी रहेगा. But यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. Is pressure constant, increases or decreases in the VT diagram? ये VT diagram है. Like this is the line. ठीक है. बोलो. तो answer is hidden here. Answer is hidden in this question. इस question में छिपा हुआ answer. If you see carefully.
ये लाइन को उठा के इधर शिफ्ट कर दो, कैसे आएगी? लाइक दिस। कहां से स्टार्ट हो रही? P1 से। कहां पे एंड हो रही? P2 पर। P1 इज द हायर प्रेशर, P2 इज द लोअर प्रेशर, है ना? ये ऐसे ड्रा करते चलो, एक लाइन ये ड्रॉ की, दिस इज P1, दिस इज P2। तो P1 ऑलरेडी वी हैव फाउंड आउट, मोर प्रेशर, P2 लेस प्रेशर। लाइन स्टार्ट फ्रॉम P1 एंड गोज टू P2, तो प्रेशर डिक्रीजेस, है ना? लो प्रेशर पे जा रही है लाइन ऐसे। If it is not passing through the origin, it is not constant, decreases. So otherwise, mathematically, you have to do. You have to write the equation of this line and intercept लिखना पड़ेगा. Negative intercept है इधर. Equation of a straight line coordinate से लिखना पड़ेगा. Then you have to do so many things to conclude this. A very big one-page answer is there in the books. But यहाँ से तुम direct लिख सकते हो. All right. So we can also say that volume is increasing, so pressure is decreasing. वॉल्यूम इंक्रीज करने से प्रेशर, ऑफ कोर्स वॉल्यूम इंक्रीज करने से प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बट इसमें ओके, इफ इट इज लाइक दिस, देन अगेन वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। इफ यू आर गोइंग लाइक दिस, यहाँ से ऐसे जा रहे, अगेन वॉल्यूम इज गोइंग अप। पहले यहाँ पे वॉल्यूम V1 था, यहाँ पे, देन इन दिस केस यू आर गोइंग फ्रॉम P2 टू P1। ऐसा भी तो है, ऐसे में तो डिफरेंट आंसर आएगा, अपोजिट आंसर आएगा। तो ओनली वॉल्यूम इंक्रीजिंग इज नॉट गारंटी कि प्रेशर इज डिक्रीजिंग, है ना? कुड यू गेट माय क्लू? ऐसा अगर ऐसे लाइन है, इसमें भी तो ऐसे लाइन है, इसमें भी तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इफ लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम P2 एंड गोइंग टू P1 लाइक दिस, इन दैट केस आंसर इज इंक्रीजिंग। गॉट इट? Yes. So we have to be 100% sure in all the cases it should match. ठीक है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम यहाँ पर अपना दोनों आंसर दे रहा है। ऑलराइट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर, है ना? तो इसके हमने पॉइंट्स देख लिए थे, है ना? ये दीज आर द लाइंस कॉल्ड आइसोथर्म्स, है ना? ऐसे वाली जो ऐसे लाइंस आएंगी T3, जितनी ऊपर लाइन होगी टेम्परेचर मोर होगा। और उसका हमने वर्क डन का डेरिवेशन किया था, वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन से करना पड़ा। ओके, कैन यू रिप्लाई दिस क्वेश्चन हियर? आइसोथर्मल का रिप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, देखो। An ideal gas has an initial pressure of 3 pressure units, an initial volume of 4 volume units. Initial 3 है और प्रेशर 3 है और वॉल्यूम 4 है। The table gives the final pressure and volume of the gas in those same units in 5 processes A, B, C, D, E. Which process starts and end on the same isotherms? ये isotherms है ना, ये वाले। कौन सा प्रोसेस सेम आइसोथर्म से स्टार्ट होकर सेम आइसोथर्म पे एंड होगा? बोलो, हाउ टू गेट दिस? देखो, टेम्परेचर अगर सेम होता है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो लेफ्ट साइड में कितना है? 3। इनिशियल क्या है? 3 into 4 12। राइट साइड में किस में 4 आएगा? 12 into 1, सॉरी, किस में 12 आएगा? ये 12 हो गया। 12 इज इक्वल टू, राइट साइड में 12 into 1 12 आ गया। तो this will be having the same, it will be coming on the same isotherm, है ना? अगर लेफ्ट साइड में P1 V1 है तो राइट साइड में भी P2 V2 इक्वल आ गया, तो सेम टेम्परेचर। 6 into 2, दिस इज ऑल्सो, ये डिफरेंट है। देखो, ये 35 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, ये 12 आ रहा है। तो ऑल बट सी, आंसर इज ऑल बट सी।
ऑल जो है सेम आइसोथर्म पे स्टार्ट होंगे, सी को छोड़ के। सी का जो है प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विच इज नॉट 12, सी इज कमिंग 35, तो इट इज गोइंग टू समवेयर अदर प्रोसेस को टच कर रहा है। 35 मतलब ऐसे कहीं पे टच कर रहा है, इससे तो स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर एंड गोइंग टू सम अदर हायर टेम्परेचर पे जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट इज मोर, इसका मतलब टेम्परेचर मोर होगा, एन आर तो कांस्टेंट ही रहेंगे। क्लियर? तो दिस इज चेक पॉइंट नंबर 1। तो आंसर इज ऑल बट सी। Initial product is 12, final product should also be 12 units. तो इसके स्लोप वगैरह हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ, वी वर डिस्कसिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती है, इंसुलेटेड वॉल्स होंगी सिलेंडर की, neither heat can enter और nor heat can leave। जैसे थर्मस फ्लास्क है ना, तो उसकी वॉल्स इंसुलेटेड होती है, ना तो हीट बाहर जाती है ना उसमें बाहर के अंदर आती है ना। तो if there is no heat transfer, Q is 0 from first law of thermodynamics, ये तो 0 हो जाएगा, W will be, इसको इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। तो वर्क माइनस मीन्स वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यूज हो रही है तो इंटरनल एनर्जी विल बी ड्रॉप, जितना वर्क हुआ उतना इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इक्वेशन इज पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या है? एडियाबेटिक इंडेक्स व्हिच इज द रेशियो ऑफ Cp by Cv। गामा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, यू नो, हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है, बिकॉज वी सी Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। कितना बड़ा है Cp? Cp minus Cv is equal to R, something 8.3 more, so ratio will be greater than 1। इसका भी जो है ग्राफ जो है ऑलमोस्ट सेम आइसोथर्मल जैसा ही है, बट इट विल ड्रॉप। सपोज ये आइसोथर्म 1 है, दिस इज आइसोथर्म 2 है, ये 1 एंड 2, T2 इज ग्रेटर, तो टेम्परेचर एक आइसोथर्म से दूसरे पे आ जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर विल ड्रॉप व्हेन इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर विल डिक्रीज। ठीक है, इट विल हैव द मोर स्लोप, ऐसे ये आइसोथर्म के स्लोप होंगे, तो एक आइसोथर्म से दूसरे पे आ जाएगा वो टेम्परेचर ड्रॉप होके, तो स्लाइटली मोर वर्टिकल एज कंपेयर टू आइसोथर्म का जो स्लोप होता है उससे। ये क्वेश्चन किए थे इसके हमने, ये होमवर्क में था ना, इसका आंसर आ गया P1 V1। तो P कितना है? 8 एटमॉस्फेयर। लेट द आंसर बी इन एटमॉस्फेयर इटसेल्फ, वी आर नॉट कन्वर्टिंग इट, है ना, बाद में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज सेम इनटू में है, इनटू में नहीं भी कन्वर्ट किया तो चलता है, प्लस माइनस होता तो कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो V1 टू द पावर गामा, P2 निकालना है, V2 इज 8 टाइम्स ऑफ V1 टू द पावर गामा, तो 8 V1 टू द पावर गामा P2, 8 टू द पावर गामा इंटू V1 टू द पावर गामा, ये तो हो गया कैंसर। यहाँ से 8 इज इक्वल टू P2 और ये 8 की पावर गामा इज 1.5, तो पावर ऑफ 8 is 1.5, how much it will be? एट की पावर 1.5 कैसे सॉल्व करेंगे? 1.5 को 3/2 ले सकते हैं, इसका पहले क्यूब कर लो, 64 हो जाएगा। नहीं, क्यूब 8 का जो क्यूब है कितना होगा? 8 का क्यूब 64 इंटू 64, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ मिस्टेक हुई है क्या? 8 इंटू 8 इंटू 8 हो गया ना, इंटू 8, इसका क्यूब रूट निकाल लोगे, स्क्वायर रूट निकाल लो। कितना आएगा जी? 8, इसका तो √8 बचेगा ना, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग और समथिंग, 1/√8, so that is 1/2√2 atmosphere।
Calculation is okay. I thought in round figure answer should come, but it is not. Okay, 4 होता तो 4 times होता तो round figure में आ जाता ना. If it was 4, तो 4 into 4 into 4, 64 का root 8 आ जाता, तब 8 आंसर आता है ना. Now it's coming, तब 1 आता. In that case it would have been coming 1, but now it is 1 by 2 root 2 atmosphere. Clear? Come on, just show your presence. Are you there? Can you hear me? Yes, sir. Yes. Okay. क्वेश्चन समझ में आ गया ये? कैलकुलेशंस जो है 1.5 मीन्स 3/2. पहले क्यूब कर लो बाद में रूट ले लो, या पहले रूट ले लो बाद में क्यूब कर लो, डजंट मैटर. फोर टाइम्स में एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेयर आ जाएगा. एटमॉस्फेयर क्यों लिखा है? यहाँ भी हमने कन्वर्ट नहीं किया, इंटू 10⁵ लिखना पड़ेगा फिर, है ना. तो बेटर जस्ट लेट इट बी लाइक दैट, एटमॉस्फेयर में लिखना मैंने तो. This type of questions are asked in your examinations. You have to calculate them properly. Other relations हमने PV is equal to nRT से हमने P replace कर दिया इस equation में यहाँ पर. So we got this relation, and again PV is equal to nRT से V replace कर दिया here. So we got this equation. So these two equations are also there for same adiabatic process, and इस पर भी numericals आते हैं जैसा अभी हमने किया ना. Similar numerical is being asked on this equation also. This in fact is V, थोड़ा सा bend हो रहा है. This is V. ऊपर वाला गामा है और नीचे V है ना. This is V. V to the power gamma. वर्क डन का डेरिवेशन कर रहे थे, यहां तक मैंने बता दिया था ना. इसमें भी वही वेरिएबल कंडीशंस हैं, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा PdV. तो प्रेशर का क्या लिखे? यहाँ से देखो हमने एडियाबेटिक इक्वेशन लिखी, राइट साइड में कांस्टेंट उसको K लिख दिया और V को इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस गामा हो गया. K को भी बाहर ले लिया. अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, K बाहर रहेगा और ये V to the power माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा. नीचे भी माइनस गामा प्लस 1, लिमिट्स V1 to V2. ठीक है, तो एक इसको ऐसा लिख लेते हैं, लिमिट्स लगा देते हैं. बाहर 1 वाले टर्म को पहले लिखते हैं, 1 माइनस गामा लिख सकते हैं नीचे. K let it be like this, and this will be V2 to the power minus gamma plus 1. लिमिट लगा देंगे, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट. नाउ एज आई टोल्ड यू, K की वैल्यू देखो, जहां पे 2 वाले टर्म्स हैं तो K की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे. ओके, तो K को अंदर शिफ्ट कर रहे हैं अभी हम लोग. वी आर शिफ्टिंग इट इनसाइड. तो दैट इज P2 V2 टू द पावर V2 रहेगा, टू द पावर गामा भी रहेगा ये वाला, और ये वाला भी एज इट इज रहेगा इंटू V2 माइनस गामा प्लस 1. सिमिलरली यहाँ पर P1 V1 टू द पावर गामा, और ये इसका भी पहले जो है वो भी रहेगा. इफ यू सिंप्लीफाई इट, W इज इक्वल टू 1 माइनस गामा. ये P2 देखो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे पावर्स, ये प्लस है ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगी. तो यहाँ पे क्या जो बचेगा आपका, तो इट विल बी, वर्क डन विल बी P2 V2 minus P1 V1 to the upon 1 minus gamma. So you can end the derivation here itself, but numericals के लिए थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसमें. देखो PV is equal to nRT है ना, तो nR हमने कॉमन ले लिया, T2 minus T1 है ना, 1 minus gamma. तो ये numericals में काम आएगा. But since gamma is having bigger value, I told you, माइनस आएगा. गामा को आगे लिखा जाता है जनरली. देखो गामा को आगे लिखा जाता है तो ऐसे आ जाएगा. देखो गामा -1 NR delta T. Delta T is T2 minus T1. ठीक है,
So you may find somewhere in books writing like this. You can go derivations में you can just have up to here. ठीक है? But additional point I am telling you, देखो गामा को हमने आगे शिफ्ट किया तो माइनस भी आगे आ जाएगा एक। तो T2 देखो, T1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर। एक्सपेंशन में क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग बिकॉज इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, फाइनल टेम्परेचर विल बी लेस। तो यहाँ पे जो माइनस आएगा उस माइनस माइनस को कैंसिल करा देगा। वर्क एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव ही मिलेगा, माइनस है नो प्रॉब्लम, बट वर्क डन विल बी पॉजिटिव in case of expansion. So I'll show you one numerical. Let us see one numerical. So you can end your derivation here itself. Can we get this? Can we get this or this? देखो ये दोनों से, are you convinced कि both are same? Are you convinced ये दोनों सेम है? क्या किया हमने? गामा को आगे शिफ्ट कर दिया, माइनस कॉमन लेके यहाँ पर गामा को पहले लिखा, बिकॉज गामा इज बिगर देन 1 हमेशा। तो this is same, this is same, this is same. Are you convinced? तो देखो all three are equal, all three are same. देखो alternate method बता दो, one liner। देखो alternate method देखो, but this will not work in your subjective paper. Since work done is equal to negative of change of internal energy, internal energy का फार्मूला क्या है? NCV delta T by gamma minus 1। नहीं, gamma minus 1 नहीं आएगा, NCV delta T only, that's all। तो CV का हमने बीच में एक क्वेश्चन किया था, प्रूव दैट CV is equal to R upon gamma minus 1। हो गया, देखो रिजल्ट समय की नहीं है, याद है? डू यू रिमेम्बर? CV हमने प्रूव किया था, CP माइनस CV इज इक्वल टू R से प्रूव किया था, CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, और CP बाई CV इज इक्वल टू गामा। तो CP की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी हमने, CV इंटू गामा माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CV कॉमन ले लिया, तो R अपॉन गामा माइनस 1। तो CV की वैल्यू ये पुट कर दी। तो ये देखो ये इजिली आ गया ये रिजल्ट, बट इट विल नॉट वर्क। यू हैव टू डू इट लाइक दिस, इंटीग्रेशन से ही करना है। यू वांट टू गेट 3 फुल मार्क्स, तो यू हैव टू फॉलो दिस इंट्रोडक्शन प्लस डेरिवेशन। यहाँ पे x टू द पावर n का फार्मूला लगाया हम लोगों ने इंटीग्रेशन में, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 है ना। Okay, so this is given in your textbook. Similarly, we have solved it exactly same है। इसके लिए थोड़ा और समझने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। So you have that temperature का फील्ड देखो, 16 grams of oxygen having gamma is equal to 7/4 undergoes adiabatic expansion. Find final temperature if initial temperature is T. Initial temperature T है, final temperature will certainly drop because it is at the cost of internal energy. The final temperature will be less than T if work done by the gas is R joules. RJ नहीं है वो, R joules है वो। We'll put the value in formula। फार्मूला बताओ, वर्क डन इज इक्वल टू, कौन सा फार्मूला लिखना चाहेंगे? ये वाला लिखना है कि ये लिखना है? ये लिखना है। ओके, ये वाला यूज करते हैं, या फिर जो तुम्हें ये याद रहे, बट जनरली दिस इज यूज्ड, NR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, या T1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू कीप इट लाइक दिस, T1 को पहले लिखो। एनीवे आई एम यूजिंग दिस सेकंड वन, NR T2 माइनस T1 1 माइनस गामा, ठीक है। तो वर्क डन इज 6, वर्क डन इज R जूस, यहाँ पे R लिख दो। नंबर ऑफ मोल्स कितने? 16 ग्राम will have number of moles is mass upon molar mass,
तो मास इज 16 ग्राम, मोलर मास ऑक्सीजन का 32 होता है, तो 1/2। तो नंबर ऑफ मोल्स इज 1/2 और T2 निकालना है, T1 इज T गिवन, दिस इज नथिंग बट T1 इनिशियल टेम्परेचर है वो, T1 is T इनिशियल टेम्परेचर अपॉन 1 माइनस गामा कितना है 7/4। तो आर गेट्स कैंसल, तो ये एलसीएम ले लो यहाँ पर, ये जब ले आओ 1 माइनस 7/4 इज इक्वल टू 1/2 T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा -3/4 इज इक्वल टू 1/2 T2। T1 तो हमने T पुट कर दिया है, तो ये 2, तो यहाँ से T2 भेज दो, T2 निकालना में T को इधर भेज दो, -3/2 T2 इज इक्वल टू T माइनस 1.5 केल्विन ड्रॉप हो जाएगा। कॉम्प्रेस करेंगे तो बढ़ जाएगा टेम्परेचर। यू आर एडिंग द एनर्जी व्हाइल कॉम्प्रेसिंग, यू आर एडिंग द एनर्जी इनटू द सिस्टम, टेम्परेचर विल गो अप। उसमें फिर क्या वर्क डन माइनस होता है, ऑन द सिस्टम होता है ऑन, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, है ना, ऐसे ऐसे लिखेंगे, वर्क डन ऑन द गैस इज आर जूल, तो माइनस होगा, ऑन द गैस इज, ऑन मीन्स आई टोल्ड यू हाउ टू रिमेम्बर ऑन, और ऑन में एन आ रहा है, नेगेटिव में भी एन आता है, ऑन मीन्स नेगेटिव लेना है, बट इट इज वर्क डन बाय द गैस है, तो पॉजिटिव वर्क डन, टेम्परेचर विल ड्रॉप। ठीक है, similar question has been asked in the NEET examination. Clear? Points are very clear to you. Sign convention bilkul 100% should be clear to you. Otherwise, you are likely to commit the mistake. Calculation एक बार देख लो. I think everything is all right. Sometimes gamma will not be given to you. Oxygen is monoatomic. You have to learn the value of gamma, which will be told to you in the next chapter. All right. तो देखो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिख सकते हैं। व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस में ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट इज हीट इक्वल टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole by 1 Kelvin and heat per unit mole per unit change of temperature, but there is no heat transfer. Heat transfer is 0, delta Q is 0, specific heat is 0. So I told you molar specific heat or specific heat of gas can be ranging from 0 to infinity. इसमें 0 है, isothermal में infinite है, and in rest of the processes it will be in between 0 and infinite. What is the slope of the adiabatic process? इसको differentiate करेंगे तो ये गामा, जब हम फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म डीपी, जब सिंप्लीफाई करेंगे इसमें माइनस गामा, आइसोथर्मल में गामा नहीं था, आइसोथर्मल में -P/V मिला था, इसमें माइनस गामा भी मिल जाएगा, उसमें -P/V था दिस मच, इसमें गामा भी मिलेगा बिकॉज डिफरेंशिएशन में गामा आगे आ जाता है, तो दिस इज गामा टाइम्स ऑफ P/V और नेगेटिव आल्सो बिकॉज स्लोप ऐसे कर्व ऐसे आता है, at any point angle tangent drawn will make angle more than 90, इसलिए माइनस स्लोप होता है इसमें। तो इसमें बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा? बल्क मॉडुलस का फार्मूला फिर से वही जैसे आइसोथर्मल में क्वेश्चन किए थे हमने, dP/dV, dP/dV की वैल्यू पुट कर दो, माइनस तो बाहर है ही, ये भी माइनस है, तो VV कैंसिल, गामा टाइम्स ऑफ P, है ना, तो उसमें P था ओनली बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल में इसमें गामा टाइम्स ऑफ दैट, तो दिस विल नीड इन द लास्ट चैप्टर में जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। रेशो क्या होगा फिर? और द रेशो ऑफ स्लोप इन एडियाबेटिक प्रोसेस टू द आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लोप इन एडियाबेटिक
डिवाइड बाय स्लोप इज आइसोथर्मल। एडियाबेटिक में कितना स्लोप है? ये माइनस गामा पी बाई वी। आइसोथर्मल में कितना था? माइनस पी बाई वी था, गामा। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो एडियाबेटिक का स्लोप मोर है। तो देखो, अगर आइसोथर्मल का ये है तो दिस इज मोर मोर स्लोप है ना। किसी पॉइंट में चेक कर सकते हो, तो ये 2 पॉइंट है। दिस इज मोर वर्टिकल एज कंपेयर टू दिस लाइन। जितनी 90 की तरफ एंगल जाता, स्लोप देखो ऐसे ऐसे कोई इंक्लाइन प्लेन रखो तो मोर स्लोप, मोर टुवर्ड्स 90 डिग्री, वेदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट डजंट मेक एनी डिफरेंस, मोर स्लोप। तो इसका मोर स्लोप है एडियाबेटिक का, गामा टाइम्स में। गामा की वैल्यू भी नो मोर देन 1 होती। तो एडियाबेटिक प्रोसेस कॉमन सेंस से भी बोल सकते हो। देखो, ये आइसोथर्म्स लाइंस है, ये T2 की है, ये T1 की आइसोथर्म लाइन है। तो एक आइसोथर्म से दूसरे आइसोथर्म पे आ जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस। टेम्परेचर ड्रॉप होता है when expansion takes place, volume is expansion takes place, temperature will drop, therefore it will be expansion में नीचे रहेगा ये। अच्छा देखो, एक्सपेंशन में तो रहेगा ऐसे, और कंप्रेशन में, एक्सपेंशन में ये देखो, एक्सपेंशन में एडियाबेटिक प्रोसेस इधर है, और कंप्रेशन में कैसा जाएगा? ऐसा। कंप्रेशन में इस तरह से आएंगे। तो अभी स्लोप किसका ज्यादा? ये मोर वर्टिकल दिख रहा है। ओके, इसका पूछता हूँ मैं क्वेश्चन, बिकॉज दिस वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कंप्रेशन में कैसा रहेगा? अभी कौन सा, ये पीवी है, कौन सा ज्यादा स्लोप बना रहा है, कौन सा ज्यादा नॉर्मल की तरफ जा रहा है? नाउ दिस इज एडियाबेटिक एंड दिस इज आइसोथर्मल। ठीक है, इसका स्लोप कम है। देखो यहाँ पे, देखो ऐसे, देखो इट इज मेकिंग इट इज हैविंग दिस, और इसका एंगल ज्यादा आ रहा है। तो ये स्लोप पर ही डिपेंड करना है, ना कि ऊपर नीचे। ऊपर नीचे में फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो एक्सपेंशन में ऐसा आएगा, एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में ये इंटरचेंज हो जाएंगे। आइसोथर्मल नीचे आएगा, और बिकॉज स्लोप इज अकॉर्डिंग, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर था, यहाँ से। तो ये वॉल्यूम वी है, यहाँ पे ये ऐसे दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, और इसको आगे ले जाना पड़ेगा। तो ये उसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा। ठीक है, बट इट्स ओके, इट इज अंडरस्टैंडेबल। स्लोप, दिस इज हैविंग मोर स्लोप। ठीक है, ओके। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, दिस इज द डे टू डे लाइफ में तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस का, पुट योर हैंड a few centimeter in front of your mouth, open your mouth wide and exhale, breathe out. Your breath will feel warm and on your hands. You can do it experiment after the class. तुरंत मत करो, बाद में करना, because the exhaled gases emerge at roughly the temperature of your body's interior, 37, almost 37 डिग्री पर ये टेम्परेचर रहेगा ब्रेथ का। नाउ क्लोज योर लिप्स एज दो यू आर गोइंग टू विसल, ऐसा। ठीक है, एंड अगेन ब्लो 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 ऑन योर हैंड, सामने हाथ रखो, उसको ब्लो करो। द एक्सेल्ड गैसेस विल फील मच कूलर, दे हैव रिटन मच कूलर, तो दे मीन इट, है ना। यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट आफ्टर द क्लास। इन दिस केस gases undergo rapid expansion, essentially adiabatic expansion. So rapid expansion is also called adiabatic expansion. Why? Because no
नो टाइम टू ट्रांसफर द हीट, उसमें हीट ट्रांसफर होने का टाइम नहीं मिलता। जैसे मॉर्निंग में मैंने बोला था बस्टिंग ऑफ द टायर, साइकिल टायर जब बस्ट होता है कूल हो जाता है वहां पर जहां से वो बस्ट होता है, यू कैन टच इट एंड फील इट वेरी कूल, है ना। सिमिलरली हियर आल्सो रैपिड ब्लोन, है ना, तो इट हैज टू बी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इमर्ज तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन एज दे इमर्जेस बिटवीन योर लिप्स, सो द टेम्परेचर ऑफ द एक्सियल गैसेस डिक्रीजेस। एक्सपेंशन में टेम्परेचर ड्रॉप है, अभी हमने न्यूमेरिकल भी किया था, टेम्परेचर वाज T-1.5. If expansion, adiabatic expansion is there, internal energy decreases and that temperature drops. और जितना फास्ट ब्लो करेंगे उतनी कूल एयर मिलेगी तुम्हें हाथ पर। तो यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो दिस इज लाइव एक्सपेरिमेंट यू कैन डू, बट डू इट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रोसेस अभी चार जो मेन प्रोसेस पढ़े, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट है, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, डेल्टा क्यू इज 0। इंसुलेटेड कंटेनर रहेगा, लास्ट वाले में इंसुलेटेड रहेगा, देयर विल नॉट बी हीट एंटरिंग टू द सिस्टम और गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम। ऑलराइट, तो ये देखो दीज आर द कुछ वेरी गुड क्वेश्चंस अभी जो हम डिस्कस भी कर रहे थे ग्राफ का। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये starting with the same initial conditions, an ideal gas expand from volume V1 to V2, ये वॉल्यूम यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2, ठीक है। Three different ways the work done by the gas is W1 if the process is isothermal, W2 if it is isobaric, यहाँ पे लिखा भी है 2, and W3 if it is adiabatic, ये 3 है, यहाँ पे W3 3 है, isobaric, isothermal, adiabatic, ठीक है। Then which of the following option is correct? Okay, diagram was not given in fact, डायग्राम नहीं दिया था, ओनली नेम दिए थे ना। W1 कब है, आइसोथर्मल के लिए, ये तो मैंने आई वांट टू एक्सप्लेन यू विद द डायग्राम। आइदर यूज द फार्मूला, अभी वर्क डन के फार्मूले तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, याद भी नहीं होंगे ना, तो इसीलिए इट इज बेटर टू यूज द दैट अदर नॉलेज ऑफ दैट वर्क डन। क्या नॉलेज है वर्क डन की, बोलो। वर्क डन ग्राफ से कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द दैट ग्राफ, पीवी ग्राफ। तो आइसोबारिक का तो ऐसे जाएगा, इसका एरिया सबसे ज्यादा है आइसोबारिक, W2 इज मैक्सिमम, हियर आल्सो। पहले चेक कर लिया करो, मोमेंट यू नो वन ऑफ द आंसर्स, टिक द ऑप्शन, हो सकता है वही ऑप्शन हो केवल, तो यू डोंट हैव टू ब्रेक योर हेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट्स, है ना। तो जस्ट इसमें 2 ऑप्शन है, तो यू हैव टू क्रॉस चेक फर्दर। नेक्स्ट वन विल बी W1, आइसोथर्मल का एरिया नेक्स्ट नंबर पे, W1 किस में, दैट्स ऑल, यू डोंट हैव टू चेक द थर्ड पॉइंट, ए इज द राइट आंसर। एडियाबैटिक में सबसे कम मिलेगा, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेम चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड सेम गैस, है ना, NR भी सेम होना चाहिए, N भी सेम होना चाहिए, R तो कांस्टेंट ही है, सेम नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए, सेम गैस के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सेम चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है, तो वर्क डन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, दिस वन। This is JEE question, but this is easy question, even your normal boards examination and final examination can be asked, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। तो एरिया इज इजिली, एरिया से इजिली निकाल सकते हैं ना। तो ये इसी से देखो, चार जो प्रोसेस पड़े इसी से रिलेटेड ये भी है, देखो दिस इज more interesting question than previous one.
क्लैरिटी थोड़ी कम दिख रही है। एनीवे, कैन यू सी इट? क्वेश्चन ये है, देखो ऊपर उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, जो ऑल द 4 प्रोसेस आर शोन, दिस इज आइसोबारिक, दिस इज आइसोथर्मल, दिस इज एडियाबैटिक, दिस इज योर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आइसोकोरिक। तो इसमें पूछा है रैंक द पाथ 1 एंड 2 एंड 3। 1 एंड 2 एंड 3 के लिए, इसके लिए इसको छोड़ना है। अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ट्रांसफर टू द गैस एज हीट, ग्रेटेस्ट फर्स्ट। क्यू सबसे ज्यादा, क्यू किस में है? क्यू आर डेल्टा क्यू सबसे ज्यादा किस में होगा? 1 में होगा कि 2 में होगा कि 3 होगा? हीट सप्लाइड, हीट ट्रांसफर। कैन somebody say me? Just let me see how much quick you are in applying. Can somebody arrange the sequence quickly? Only between 1, 2 and 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. अच्छा, कैसे अरेंज करना है? ग्रेटेस्ट फर्स्ट लिखना है। 3 में मैक्सिमम है क्या? 3 में Yes, sir. मैक्सिमम है? 500 No, minus 100. अरे 3 में मैक्सिमम नहीं है। 3 में तो 0 है, एडियाबेटिक प्रोसेस। 3 इज एडियाबेटिक। आई टोल्ड यू वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल 4 प्रोसेस की बात हो रही है। ऊपर जो मैंने बताया ना, मेंशन किया है, ऑल 4 स्पेशल प्रोसेस जो अभी हमने डिस्कस किए थे। दिस इज एडियाबेटिक, दिस इज आइसोथर्मल, दिस हैज टू बी एडियाबेटिक। इसमें तो क्यू 0 होता है। दिस इज अ लिस्ट। और इसमें क्या होगा? इसमें 1 2 हाँ, 1 में मैक्सिमम होगा क्या? 1 में देखो, हाउ कैन वी से 1 में मैक्सिमम होगा? हीट सप्लाइड इसमें कितनी होती है? कितना वर्क डन होता है? क्यू कितना होता है? एन आर टी। एरिया से देखें क्या? एरिया से वर्क, ओके, एरिया से कंक्लूजन होगा क्या? ओके, देखो एक काम करते हैं, चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये थर्ड का तो डिसाइड हो गया, क्यू 0 है, हीट सप्लाइड, क्योंकि एडियाबेटिक है ना। नाउ लेफ्ट विद द 1 एंड 2। 1 एंड 2 में आइसोथर्मल जो है, आई मीन इसमें ये आइसोथर्मल है, चेंज ऑफ इंटरनल होती नहीं है, टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है। तो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन इज एरिया। तो नेचुरली नाउ 1 विल बी टॉपिंग द लिस्ट। नाउ 1 में क्या है? एक तो देखो उसका एरिया, एरिया ज्यादा है, वर्क डन इज मोर, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है 500 से। दिस इज आल्सो नॉन जीरो। तो 1 हैज टू बी द मैक्सिमम। सेकंड नंबर पे 2, थर्ड नंबर पे 3। 1 2 3। These are the very good question, checkpoints वाले, concept building. Let us see the how they are given the answer. Answer देखते हैं इसका, what is their explanation. नहीं, ये तो checkpoint, answer कहाँ पे है इसका? Okay, 1 2 3, Q3 is 0 as I told you. It is your adiabatic process. Q2 goes in, Q2 goes into work W2. Q2 किसका दिया? एक मिनट, क्या दिया? Q2 goes into work W2, but Q1 goes into the greater work. हाँ ठीक है, Q1 ये वाला goes into the greater work। एरिया देखो, तो वर्क से ही केवल हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। चेंज ऑफ इंटरनर्जी वाला भी पॉइंट था वैसे तो हमें चेंज ऑफ इंटरनर्जी नहीं भी पता है, वैसे तो हो ही नहीं रही चेंज ऑफ इंटरनर्जी उसमें, ठीक है। These are the good questions. Any difficulty so far? What I told you, take the help of the first law of thermodynamics. 1 में वर्क डन ज्यादा हो रहा है और इंटरनर्जी इज आल्सो नॉन जीरो। 2 में इंटरनर्जी जीरो क्यों है? इंटरनर्जी किस पे डिपेंड करती है? चलो लेट मी एक्सप्लेन यू। 2 में डेल्टा यू इन 2 इज जीरो बिकॉज डेल्टा यू इज NCV T2 माइनस T1। इसमें टेम्परेचर एक ही आइसोथर्म है, 500 पर ही है वो, इट इज मूविंग 1 to 2। तो T2 एंड T1 आर इक्वल, तो ये जीरो हो जाएगा। नो चेंज ऑफ इंटरनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओनली वर्क हो रहा है, वो भी कितना? इतना एरिया का, लेस वर्क, ठीक है।
ये तो हो गया था ना, इसको मैं यहाँ से रब कर दूं। जस्ट नाउ वी डिड इट, आइसोथर्मल वाला था। ना देखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने कोर्स में है बीच का, हीट इंजन्स हैव बीन रिमूव्ड एंड नो रेफ्रिजरेटर, बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज explaining the working of heat engine and refrigerator, तो which has been deleted, तो only second law। तो देखते हैं सेकंड लॉ का स्टेटमेंट तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो था, व्हाई द सेकंड लॉ इज नीडेड, लेट अस सी। फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी जो है वर्क डन में कन्वर्ट होगी और वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होगा, बट इट इज नॉट सो सिंपल कि एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो गई और ऑलवेज वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से हमने एक बुक को छोड़ा इधर टेबल पे, इट विल कम एंड हिट द टेबल एंड पोटेंशियल एनर्जी mgh विल बी कन्वर्टिंग इनटू हाफ mv स्क्वायर। बाद में वो हिट करेगा तो दिस एनर्जी विल कन्वर्ट्स इनटू हीट आल्सो एंड सम साउंड विल बी प्रोड्यूस। पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई यहाँ पर, पार्ट ऑफ द हीट में, है ना। Suppose same heat if we provide to the table and book, will the book jump? No. It is not violating. It is not violating the law of conservation of energy. Whatever energy it is, whatever heat it is producing or sound, same you give it to book and table, will it book will go up? No. So it is not the violation of first law, but things doesn't work like that. So first law is not complete. उसको कंप्लीट करने के लिए सेकंड लॉ बनाया गया, है ना, कि भाई अगर ऐसा कुछ रिवर्स करना है तो एक तो उसके लिए मशीन होनी चाहिए, है ना, इंजन होने चाहिए वर्क हीट को कन्वर्ट करने के लिए वर्क में, है ना। ऐसे वर्क नहीं होगा सिंपली। और उसकी इफिशियंसी भी कंट्रोल करती है। इफिशियंसी भी फिर ऐसा भी नहीं होगा कि जो भी हीट एनर्जी दे दो इंजन को पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाए। इट विल डिपेंड्स अपॉन द लिमिट, फंडामेंटल लिमिट ऑफ नेचर। अपना एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उससे नीचे नहीं जा सकते हम। ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज से 20 डिग्री, यू आर यूजिंग द हीट इंजन, इट इज यूजिंग द एनर्जी अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। जो सराउंडिंग टेम्परेचर उससे नीचे नहीं जा सकते। वैसे उससे नीचे जाना है तो फिर तुम्हें कंप्रेसर फिट करने पड़ेंगे, जैसे एसी में, जैसे हम इसमें करते हैं रेफ्रिजरेटर में। तो सेकेंड लॉ इज लिमिट that whatever the limitations of first law is there, that is completing in the second law। जैसे मैंने हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल दिया, तो केल्विन प्लैंक्स का स्टेटमेंट क्या है? नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is absorption of heat from the reservoir, मतलब हॉट सोर्स से, रिजर्वायर हॉट सोर्स, एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू द वर्क, मतलब 100% इफिशियंसी। 100% को क्या लिखेंगे? 1 और 100%, मतलब जितनी हीट दी उतनी पूरा का पूरा वर्क मिल गया। फर्स्ट लॉ डजंट से कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट सेकंड लॉ से ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट गो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स। नेचर की जो लिमिटेशंस है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। हार्डली इफिशियंसी कितनी होती है अपनी ऑटोमोबाइल इंजन की? 30%। 70% ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड, यू नो दिस। तो 100% मतलब पूरी एनर्जी यूज ही नहीं कर सकते। दैट सेकंड लॉ से पूरी एनर्जी यूज करनी है तो टेम्परेचर 0 केल्विन होना चाहिए सराउंडिंग का। वी कैन नॉट अचीव सराउंडिंग का टेम्परेचर, लैब में भी बहुत मुश्किल होता है। एंड 0 केल्विन के लिए क्या होता है? सब मॉलिक्यूलर मोशन शुड स्टॉप, तो बर्निंग एक्शन विल नॉट व्हाट इज कॉल्ड combustion will not take place in the engine। ठीक है। सेकंड वन इज, अभी देखो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में ऑलरेडी कोल्ड टेम्परेचर इज लेस देन द सराउंडिंग, है ना। तो टेम्परेचर जो है बाहर का टेम्परेचर मोर है, अंदर का टेम्परेचर लेस है। देन आल्सो रेफ्रिजरेटर का जो वो है मशीन, इट इज सेंडिंग द हीट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड उसके लिए, बट इट इज नॉट डायरेक्टली पॉसिबल। फर्स्ट लॉ से ओके, कंजर्वेशन में आप हीट है नो प्रॉब्लम, जितनी हीट अंदर से बाहर आएगी टोटल हीट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। बट इट इज नॉट
कोल्ड टेम्परेचर से हॉट टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी ही नहीं, इवन इफ वी डोंट वायलेट द फर्स्ट लॉ। उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। दैट्स व्हाट दे से क्लॉसियस स्टेटमेंट, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is transfer of heat from colder object to hotter object। ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, तुम्हें कंप्रेसर लगाना पड़ेगा एसी में एंड रेफ्रिजरेटर में। कंप्रेसर जो है कोल्डर से हॉटर की तरफ हीट को ट्रांसफर कर सकता है, नेचुरली हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होती है। So these are the two statements. One is about the heat engine, other is about the working of the refrigerator. So you have to remember these statements as far as second law is concerned. Okay. So no process is possible whose sole result is transfer of heat from the colder to hotter. You have to take the some external help, जैसा कि हम इलेक्ट्रिसिटी से कंप्रेसर चलाते हैं उसमें, एसी में भी और रेफ्रिजरेटर में भी। Then it is happening, heat transfer takes place from the colder to hotter surrounding। रूम में भी कोल्ड टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग का हॉट होता है, फिर भी एसी इज एबल टू डू इट, एनर्जी ट्रांसफर कराता है वो कोल्ड से हॉट की तरफ। ठीक है, तो दिस बोथ द स्टेटमेंट यू शुड लर्न। देखो रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस भी शॉर्ट नोट आ सकता है इस पे। देखो रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, ऐसा प्रोसेस which can be turned back। Suppose a thermodynamic process goes from I to F, I से F की तरफ गया, it will be reversible if it can be turned back such that both the system and surrounding वापस आ रहे हैं, system and surroundings return to their original state with no other changes anywhere else in the universe। अगर तुम पिस्टन को तुमने एक्सपेंड किया है, सर एक्सपेंड किया, बाद में कॉम्प्रेस किया, तो एवरीथिंग थिंग्स ऑल दैट पैरामीटर्स आर रिवर्सिंग। जो ऊपर जाते समय टेम्परेचर था, नीचे आते समय टेम्परेचर वही प्रेशर, एवरीथिंग। एनर्जी आल्सो, जितनी एनर्जी पहले थी बाद में उतनी एनर्जी मिल गई। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली नॉट हैपनिंग। कुछ हीट लॉस होती है जो कि फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाती है, तो सिस्टम विल नॉट कम बैक टू द सेम एनर्जी, उसको वापस नहीं मिलेगी, है ना, जितनी थी। सम विल बी dissipated to the universe and temperature of universe will increase। तो बट अगर रिवर्सिबल प्रोसेस बनाना है तो इट शुड बी क्वासी स्टैटिक एंड नो फ्रिक्शन, नो डिसिपेटिंग फोर्सेस, नो डिसिपेटिंग फोर्सेस, मतलब फ्रिक्शन एंड ऑल, विस्कोसिटी एंड ऑल, then only it is possible। Now question is why do we require the reversible process? Reversible process actually क्या है कि efficiency, it defines the efficiency of heat engine। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो efficiency will be maximum। तो if ideally we cannot achieve that things, but practically जितना क्लोज जा सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के, तो we can have the maximum efficiency। efficiency बढ़ाने के लिए रिवर्सिबल बनाने की कोशिश की जाती है, बट प्रैक्टिकली जो है we cannot achieve the 100% results, 100% reversible, but more close you are, है ना। जितना फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन के लिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह डालते हैं, एंड स्लो किया तो और हाई एफिशिएंसी मिलेगी, बट जनरली क्वासी स्टैटिक पॉसिबल नहीं है। एक्सीलरेटिंग होता है, जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो इट इज एक्सीलरेटिंग, स्लो नहीं होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसको हम वापस न रिवर्स कर सके, है ना, जैसे गैस अगर लीक हो गई सिलेंडर में से किचन में, तो इट कैन नॉट बी रिवर्स, उसको हम वापस सिलेंडर में किसी भी कंडीशन में नहीं ले जा सकते, या फिर ये कंडीशन नहीं है तो इट विल बी द इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। तो जस्ट गो थ्रू योर बुक्स and try to write the short note on the reversible and irreversible processes first।
रिवर्सिबल प्रोसेस में एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन विल बी मैक्सिमम। तो थियोरेटिकली विल कंसीडर हीट इंजन, अभी तो नहीं अपने कोर्स में। तो हीट इंजन जो पढ़ते हैं रिवर्सिबल वाला पढ़ते हैं, एफिशिएंसी इज मैक्सिमम देयर। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना शॉर्ट नोटिस पर। Can you see these questions based on this? इसका स्नैपशॉट ले लो। We'll discuss tomorrow morning. कल tomorrow morning I think 8:30 पे अपना क्लास, 8:30 to 10 तक क्लास है। We can discuss this and short test also, last 10 minutes. Try to read these questions so that when I explain them you can just understand. तो जितना इस चैप्टर में पढ़ा है उसके सब क्वेश्चन है। स्नैपशॉट ले लो इसका and read at least once. Okay. We have just 10 more minutes. चैप्टर नंबर 13 है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। केमिस्ट्री में भी है आई थिंक। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में दिस वाज डेवलप्ड इन द लास्ट सेंचुरी एंड गैसेस के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में it was just this studied, and kinetic theory says that particles of the gas molecules and atoms, they are in continuous random motion. Random motion, incessantly moving all around the direction till they collide each other, or they collide with the walls of the container. Just a minute. Just stop the recording and again we'll start.